اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے، کیونکہ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک لیا۔ جیش کے کماندار نے کہا، انہیں نکل جانے دو، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا۔ ابو سفیان نے کہا، چند اور سواروں کو بھیجو، ایک شبخون مارو۔ ایک سوار نے کہا، میرے قبیلے کے سردار، ہم نے شبخون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شبخون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکے والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری تھی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑ کر آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے اور اپنی عبادت کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر مذاکرات میں جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ علیہ السلام کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد ہیں جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے تھے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا،
इकरिमा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समझ गया हूँ। इकरिमा ने पूछा, क्या समझ गए हो खालिद? खालिद ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं और मोहम्मद अलैहिस्सलाम शायर भी नहीं। मैंने उनको अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। इकरिमा ने कहा, हुबुल और उज़ा की कसम, तुम मजाक कर रहे हो। कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ रहा है। खालिद ने कहा, वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है। इकरिमा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने आदमियों को कत्ल कर चुके हैं? तुम उनके मजहब को कबूल कर रहे हो जिनके खून के हम प्यासे हैं। खालिद ने दो टोक लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है इकरिमा, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। उसी शाम अबू सुफियान ने खालिद को अपने यहाँ बुलाया। इकरिमा भी वहाँ मौजूद था। अबू सुफियान ने उससे पूछा, क्या तुम भी मोहम्मद की बातों में आ गए हो? खालिद ने कहा, तुमने ठीक सुना है अबू सुफियान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ही कुछ ऐसी हैं। मशहूर मौर्रिख वाक़िदी ने लिखा है कि अबू सुफियान कबीले का सरदार था। उसने खालिद का फैसला बदलने के लिए उसे कत्ल की धमकी दी। खालिद उस धमकी पर मुस्कुरा दिया, मगर इकरिमा से बर्दाश्त न हो सका। हालांकि वो खुद खालिद के इस फैसले के खिलाफ था। इकरिमा ने कहा, अबू सुफियान, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ, लेकिन खालिद को जो तुमने धमकी दी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खालिद को अपना मजहब बदलने से नहीं रोक सकते। अगर तुम खालिद के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो हो सकता है मैं भी खालिद के साथ मदीना चला जाऊं। अगले रोज मक्का में हर किसी की जबान पर ये अल्फाज थे, खालिद बिन वलीद मोहम्मद के पास चला गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद यादों के रेले में बहता मदीना को जा रहा था। उसे अपना माजी इस तरह याद आया था जैसे वो घोड़े पर सवार मदीना को नहीं बल्कि प्यादा अपने माजी में चला जा रहा था। उसे मदीना के ऊंचे मकानों की मुंडेरें नजर आने लगी। उसे किसी ने पुकारा, खालिद, लेकिन उसे गुजरे हुए वक्त की आवाज समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे दो घोड़े अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। घोड़े उसके करीब आकर रुक गए। एक सवार उसके कबीले के मशहूर जंगजू अमर बिन अल आस थे और दूसरे उस्मान बिन तलहा। दोनों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। खालिद ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों मुझे मक्का वापस ले जाने के लिए आए हो? अमर बिन अल आस ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? खालिद ने कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उस्मान बिन तलहा ने कहा, खुदा की कसम, हम तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश नहीं होगे, हम मदीना जा रहे हैं। अमर बिन अल आस ने कहा, बात पूरी करो उस्मान। खालिद, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल करने जा रहे हैं। हम मोहम्मद को खुदा का सच्चा नबी मान चुके हैं। खालिद ने कहा, फिर हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, आओ इकट्ठे चलें। वो 13 मई 628 ईस्वी का दिन था जब तारीख इस्लाम के दो अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में दाखिल हुए। उनके साथ उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तीनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे। सबसे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए। उनके पीछे अमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु गए। तीनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश जाहिर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और तीनों को बारी बारी गले से लगा लिया। शहीदों को दिल से उतार दें, जहन से उनका नामो निशान मिटा दें, उनकी यादों को शराब में डुबो दें। उस जमीन पर जो खुदा ने हमें शहीदों के सदक़े अता की है, बादशाह बनकर गर्दन अकड़ा लें और कहें कि मैं हूँ इस जमीन का शहंशाह। शहीदों के नाम पर मिट्टी डाल दें। किसी शहीद की कहीं कब्र नजर आए तो उसे जमीन से मिला दे, मगर जिंदगी के हर मोड़ और हर दोराहे पर आपको शहीद खड़े नजर आएंगे। आपके जहन के किसी गोशे से शहीद उठेंगे और शराब और शहनशाहियत का नशा उतार देंगे। जिसने तख्तो ताज के नशे में शहीदों से बेवफाई की वो शाह से गदा और जलीलो ख्वार हुआ, क्योंकि उसने कुरान के इस फरमान की हुक्म उदूली की कि शहीद जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। अरब के मुल्क उर्दन में गुमनाम सा एक मकाम है जिसका नाम मौता है। उसके करीब से गुजर जाने वालों को भी शायद पता न चलता होगा कि वहाँ एक बस्ती है। उसकी हैसियत छोटे से एक गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन शहीदों ने उर्दन के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी जिंदगी का जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है एहसास दिला दिया है। वो जिस मार्के में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियां पहले उस मकाम पर लड़ा गया था। फिर ये मकाम गुजरते जमाने की उड़ती रेत में दबता चला गया। कुछ अरसे से मौता के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहाँ चले जाएं और वहाँ रहने वालों से पूछें तो वो बताएंगे कि इनमें से कोई न कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 1400 साल पहले के मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन उसके मुकाबले में जम जाते हैं। उनकी तादाद थोड़ी है और लश्कर कुफार मानिंदे सैलाब है। मार्का बड़ा खूरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमी ने नहीं, वहाँ के बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी न किसी को ये ख्वाब अभी तक नजर आता है।
ये लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि 1400 साल पहले यहाँ हक व बातिल का मार्का लड़ा गया था, मगर उनके ख्वाबों में शहीद आने लगे। ये खबर उर्दन के अवानों तक पहुंची, तब याद आया कि ये वो मौता है जहां मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने जिंदा होने का ऐसा एहसास दिलाया कि उर्दन की हुकूमत ने जंग मौता और उस जंग के शहीदों की यादगार के तौर पर एक निहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए। मस्जिद की तामीर 1868 में शुरू हुई थी। उस जंग में 3 सिपाह सालार ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु एक के बाद दीगरे शहीद हो गए थे। उन तीनों की कब्रें मौता से तकरीबन 2 मील दूर हैं, जो अभी तक महफूज हैं। मदीने में आकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी जात में अजीम इनकलाब आ गया। 3 महीने गुजर गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादातर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बैठे फैज हासिल करते रहते, मगर उन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था। वो फन्ने हर्ब व ज़र्ब के माहिर जंगजू थे। उनका हसब व नसब भी आम अरबों से ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा न किया कि उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को सिपाही समझा और उसी हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और उर्दन के इलाके में उस जमाने में कबीला गस्सान आबाद था, जो उस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। यह कबीला ताकत के लिहाज से जबरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। उस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक्त रोम का शहनशाह हरकल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। कबीले कुरैश के हजारहा लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके माने मंझे हुए सरदार और सालार भी मदीना जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। कई एक छोटे छोटे कबाइल हल्काए बगोशे इस्लाम हो गए थे। मदीना इत्तलाएं पहुंच रही थीं कि कबीला गस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को ललकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ है। ये भी सुना गया कि गस्सान का सरदार आला रोम के बादशाह हरकल के साथ दोस्ती करके उसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एलची, जिसका नाम तारीख में महफूज नहीं, गस्सान के एक सरदार आला के यहाँ इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वही वहदहू ला शरीक है, और इस्लाम एक मजहब और एक दीन है। बाकी तमाम अकीदे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की सूरत इख्तियार कर गए हैं तवहुमात हैं और ये इंसान के बनाए हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गस्सान के सरदार आला को कबूल इस्लाम की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम इस ख्याल से भेजा था कि पेशतर इसके कि कबीला गस्सान रोम के शहनशाह हरकल की जंगी कुव्वत से मरूब होकर ईसाइयत की आगोश में चला जाए, ये कबीला इस्लाम कबूल कर ले और उसे अपना इत्तेहादी बनाकर हरकल से बचाया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक महफिल में कहा, खुदा की कसम इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता। हरकल ने फौज कशी की तो यूं समझो कि बातिल का तूफान आ गया जो सबको उड़ा ले जाएगा। गस्सान की खैरियत इसी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करें। उस वक्त हरकल कबीला गस्सान में दाखिल हो चुका था। उसके साथ जो फौज थी उसकी तादाद 1 लाख थी। गस्सान के सरदार आला को इत्तला मिल चुकी थी, मगर वो परेशान नहीं था। वो हरकल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची बसरा को जा रहा था। गस्सान का दारुल हुकूमत बसरा था। एलची के साथ एक ऊंट पर लदे हुए ज़ादे राह के अलावा 3 मुहाफिज भी थे। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद एलची मौता के मकाम पर पहुंचा और उसने जरा सस्ताने के लिए अपना मुख्तसर सा काफिला रोक लिया। करीब ही कबीला गस्सान की एक बस्ती थी। उसके सरदार को इत्तला मिली कि 4 अजनबी बस्ती के करीब पड़ाव किए हुए हैं। सरदार ने, जिसका नाम शुराहबील बिन अमर था, मदीना के एलची को अपने यहाँ बुलाया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। सरदार ने, जिसका नाम शुराहबील इब्न अमर था, मदीना के एलची को अपने यहाँ बुलाया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। एलची ने जवाब दिया, मैं मदीने का एलची हूँ और बसरा को जा रहा हूँ। मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तुम्हारे सरदार आला के लिए ले जा रहा हूँ। शुराहबील बिन अमर ने तंजिया लहजे में पूछा, क्या तुम कबीले कुरैश के मोहम्मद की बात कर रहे हो? क्या पैगाम है? एलची ने कहा, पैगाम ये है कि इस्लाम कबूल कर लो और बातिल के अकीदे तर्क कर दो। शुराहबील बिन अमर ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने सरदार आला की और अपने मजहब की तौहीन बर्दाश्त कर लूंगा? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं से मदीना वापस चले जाओ। एलची ने कहा, मैं बसरा के रास्ते से हट नहीं सकता।
ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जिसकी तामील में मैं फख्र से अपनी जान दे दूंगा। शुराहबील बिन अमर ने कहा, और मैं बड़े फख्र से तुम्हारी जान लूंगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। एलची के तीनों मुहाफिज बाहर बैठे थे। अंदर से 3 आदमी निकले। वो किसी की खून आलूद लाश घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। मुहाफिजों ने देखा कि लाश की गर्दन कटी हुई थी। उन्होंने पहचान लिया ये उनके एलची की लाश थी। शुराहबील बिन अमर बाहर आया। तुम इसके साथी हो? उसने कहा, मुझे यकीन है कि इसके बगैर तुम बसरा नहीं जाओगे। एक मुहाफिज ने जवाब दिया, नहीं, पैगाम इसके पास था। शुराहबील ने कहा, जाओ मदीना को लौट जाओ और मोहम्मद से कहना कि हम अपने कबीले और अपने अकीदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करते। अगर ये शख्स बसरा पहुंच जाता तो वहां कत्ल हो जाता। एक मुहाफिज ने कहा, खुदा की कसम, हम अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते। शुराहबील ने कहा, मैं तुम्हें मेहमान समझकर तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूँ और मुझे ये न कहना कि मैं तुम्हें इसकी लाश दे दूं। मदीना की तमाम तर आबादी को मालूम हो चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची दावत इस्लाम लेकर बसरा गया हुआ है। सब एलची की वापसी के मुंतजर थे, लेकिन तीनों मुहाफिज एलची के बगैर वापस आए। उनके चेहरों पर गर्द की तह और थकन के आसार ही नहीं, गम गुस्से के तासुरात भी थे। वो मदीने दाखिल हुए तो लोग हुजूम करके आ गए। मुहाफिज बाजू लहरा लहरा कर कहते जा रहे थे, खुदा की कसम, हम इंतकाम लेंगे। मौता के शुराहबील बिन अमर का कत्ल हम पर फर्ज हो गया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो बाहर मदीना की आबादी इकट्ठी हो गई। अरबों के रिवाज के मुताबिक कत्ल की सजा कत्ल थी। बाहर लोग इंतकाम इंतकाम के नारे लगा रहे थे। उस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के एलचियों को, जिनकी हैसियत सफीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तहफ्फुज देता था। किसी के एलची को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर मदीने वालों के बिखरे हुए हुजूम से फरमाया, अहले मदीना, मैंने उन्हें लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने उन्हें सच्चा दीन कबूल करने के लिए कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे। हुजूम नारे लगा रहा था, हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे। मुसलमान कमजोर नहीं, मुसलमानों का खून इतना अर्जा नहीं, हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर मर मिटेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसी रोज मुजाहिदीन इस्लाम की फौज तैयार हो गई, जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाह सालारी के फराइज ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु को सौंपे। फिर फरमाया, अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो सिपाह सालार जाफर इब्ने अबी तालिब होंगे। अगर जाफर भी शहीद हो जाएं तो सिपाह सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। अगर अब्दुल्लाह को भी अल्लाह शहादत अता कर दे तो फौज अपना सिपाह सालार खुद चुन ले। मौरिख इब्ने साद और मगाजी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 सिपाह सालार दर्जा बदर्जा मुकर्रर करके मुजाहिदीन को दुआओं के साथ रुखसत किया। आप अलैहिस्सलाम ने सिपाह सालार ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मौता पहुंचकर सबसे पहले शुराहबील बिन अमर को, जो हमारे एलची का कातिल है, कत्ल किया जाए। फिर मौता और उसके इर्द गिर्द के लोगों को कहा जाए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। उन्हें बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अगर वो कबूल कर लें तो उन पर हाथ न उठाया जाए। मुजाहिदीन की इस फौज में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु महज सिपाही थे, किसी दस्ते या जैश के कमांडर नहीं थे। इस्लामिक शॉर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।